ہم حالی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، حالی کی غزل اور پھر نظم کے حوالے سے. اب ان کے حوالے سے غزل یا نظم کے حوالے سے زیادہ بات نہیں پوچھی جاتی. ان کی جو تنقیدی سوچ ہے یا فکر ہے، اس حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے، یا ان کے اسلوب کے حوالے سے سوال پوچھا جا سکتا ہے. اب بھی ہم نے سر سید کے اسلوب پر بھی علیحدہ سے بات نہیں کی. حالی کے اسلوب پر بھی میرا خیال ہے ابھی رک کر بعد میں ایک ساتھ اسلوب کے جب موازنے کی بات ہوگی تو ہم ایک ساتھ اسلوب کے حوالے سے سب کا تذکرہ کریں گے، تو وہ اسلوب کا موازنہ کرنے کے لیے بھی بات ہو جائے گی. اچھا، سوال ایک آیا ہے بھی، سوانح نگاری کی بات کی. خودنوشت سوانح نگاری اور آپ بیتی مترادف ہیں. سوانح نگاری الگ ہے، خودنوشت اور آپ بیتی مترادف ہیں. خودنوشت یا آپ بیتی کا مطلب بایوگرافی، یعنی اپنی زندگی کے بارے آٹو بایوگرافی کہا جاتا ہے خودنوشت یا آپ بیتی کو. اس کا مطلب اپنی زندگی کے بارے میں لکھنا ہے. جبکہ سوانح نگاری بایوگرافی کو کہتے ہیں جس میں کسی دوسری شخصیت کی زندگی اور سوانح یا تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، یعنی حیات اور خدمات کو بیان کیا جاتا ہے. تو حالی نے دیگر شخصیات یعنی شیخ سعدی، مرزا غالب اور سر سید احمد خان کی زندگی کو موضوع بنایا، اس لیے حالی سوانح نگار ہیں. وہ خود نوشت انہوں نے نہیں لکھی، نہ آبیتی لکھی ہے، تو اس لیے وہ سوانح نگار ہیں. تو یہ علیحدہ علیحدہ کانسیپٹ ہیں تینوں کے تینوں نا. اچھا، ابھی جو ان کے اسلوب کے حوالے سے بات تھی میرے ذہن میں ہے کہ وہ آخر میں اگر ایک ساتھ ڈسکس کر لی جائے تاکہ اسلوب کے موازنے کی جو کیفیت ہے وہ بھی سب کے حوالے سے ایک ساتھ سامنے آ جائے. اگر سر سید کا حالی سے یا سر سید کا شبلی سے یا حالی کا شبلی سے یا حالی کا ڈپٹی نذیر احمد سے یا محمد حسین آزاد سے موازنہ کیا جاتا ہے تو ہم اسلوب کے حوالے سے دو یا تین پوائنٹس ڈسکس کر لیں گے جو آخر میں تمام حوالوں سے وہ تمام کو کور کرتا ہوا آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ آسانی سے ان کے خصوصیات بیان کر سکیں گے. اب مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں چلے آزاد کے بارے میں سب سے آخر میں بات کرتے ہیں. پہلے شبلی نعمانی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. شبلی نعمانی جو ہیں وہ بھی جو شبلی نعمانی ہیں وہ بھی بنیادی طور پر عناصر خمسہ میں شامل ہیں. شبلی نعمانی جو ہیں وہ اپنی تصانیف کے حوالے سے خاص طور پر شہرت رکھتے ہیں. تو ان کی تصانیف کے بارے میں اگر بات کریں تو زیادہ بہتر ہے. ان کی جو تصانیف ہیں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، علم الکلام، کلام مولانا سوانح مولانا روم، موازنہ انیس و دبیر، شیر العجم یا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی زیادہ تر جو تصانیف ہیں وہ سوانحی نوعیت کی ہے. اور سوانح میں بھی انہوں نے جو اسلامی تاریخ کے جو بہترین یا اہم ترین شخصیات ہیں انہیں موضوع بنایا. بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شبلی نعمانی نے اسلامی تاریخ کے شاندار پہلوؤں کی سوانح لکھی ہے. یعنی ان شخصیات یا ان زمانوں کو موضوع بنایا ہے جو مسلمانوں کی تاریخ کا سنہرا دور تھا. وہ چاہے مامون الرشید کا زمانہ ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہو یا اور دیگر حوالوں سے. اور جو شخصیات تھیں وہ بھی انتہائی اہمیت کی حامل تھیں. تو شبلی نعمانی کی تصانیف ایک خاص اہمیت کی حامل ہیں. سوانح کے علاوہ ان کی تصانیف علم الکلام کے حوالے سے ہے. علم الکلام وہ بحث ہے جس میں دلیل سے اسلامی معاملات کو ثابت کیا جاتا ہے. یعنی مذہبی امور کو دلائل سے ثابت کرنے کا علم کلام کہلاتا ہے. علم کلام کے حوالے سے بھی شبلی نعمانی نے بہت کام کیا. ان کی اکثر تصانیف میں علم کلام کے اثرات نظر آتے ہیں. ایک کتاب انہوں نے علم الکلام کے نام سے، ایک کتاب الکلام کے نام سے، ایک کتاب الغزالی کے نام سے جو لکھی، اس میں بھی امام غزالی کا جو مطالعہ کیا ان کی تصانیف کا وہ علم الکلام کے نقطہ نظر سے کیا تھا، کیونکہ علم الکلام کے حوالے سے امام غزالی کا بھی مرتبہ بہت بلند ہے. اس کے علاوہ سوانح مولانا روم میں بھی مولانا روم کی جو مثنوی ہے، مثنوی مولانا روم کو، اس کا مطالعہ بھی انہوں نے علم الکلام کے نقطہ نظر سے کیا تھا. تو اس حوالے سے بھی شبلی نعمانی کا نام آتا ہے. ان کی اور کتابیں تنقید اور تحقیق کے حوالے سے دو کتابیں خاص اہمیت کے حامل ہیں. ایک موازنہ انیس و دبیر جو تنقیدی نوعیت کی کتاب ہے، اور شیر العجم جو 5 جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس میں فارسی شاعری کی تاریخ بیان کی گئی ہے.
मवाज़ना अनीस व दबीर जो है वो तनकीदी एतबार से खास अहमियत की हामिल है। ये तसनीफ 1907 में लिखी गई। इस तसनीफ में बुनियादी तौर पर जो शिबली नोमानी हैं वो मीर अनीस के मरसियों का मुताला करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर वो वजाहत करने के लिए या मीर अनीस की इंफरादियत को उजागर करने के लिए शिबली मिर्जा दबीर का तस्करा भी कर देते हैं। डॉक्टर जबील जालबी कहते हैं कि ये जो तसनीफ है ये दरअसल बुनियादी तौर पर मीर अनीस ही का मुताला था, लेकिन जब दरमियान में बार बार मिर्जा दबीर का तस्करा भी हुआ तो उसे आखिर में मवाज़ना अनीस व दबीर करार दिया गया। और यही वो तसनीफ है जिसने मीर अनीस की शोहरत को बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया था। बाद बाज जो शख्सियात हैं उन्होंने इस तसनीफ पर एतराज भी किया है कि मीर अनीस के मुकाबले में शिबली नोमानी ने मिर्जा दबीर के जो इंतखाब अशार दिया है वो बहुत आला नहीं है, उससे बहुत ज्यादा आला और अच्छे अशार का इंतखाब दिया जा सकता था जो दोनों की शायराना खसूसियात को ज्यादा बेहतर तरीके से उजागर कर सकता था। लेकिन मुमकिन है कि जो शिबली नोमानी हैं वो मीर अनीस को ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने मीर अनीस की जो खसूसियात को इस्तदलाली अंदाज से नुमाया करने की कोशिश की थी। शेरुल अजम भी शिबली नोमानी की अहम तसनीफ है जिसमें उन्होंने फारसी शायरी की तारीख बयान की है, और ये फारसी शायरी की जो तारीख है वो भी बहुत मुनासिब और अहम तरीके से इन्होंने बयान की है। 5 हिस्सों में, इब्तिदाई 3 हिस्सों में तो उन्होंने जो फारसी के मुतकद्दिमीन और मुतवस्सितीन और मुताखरीन के दौर के जो शोरा हैं इब्तिदाई तीनों जिल्दों में, उन शोरा की तफसीलात और उनके कलाम के हवाले से तनकीदी आरा बयान की हैं। चौथी जिल्द में शायरी की हकीकत और फारसी शायरी की असनाफ और उन असनाफ में भी मसनवी और फिर शाहनामा फिरदौसी पर तफसीली बात की है, जबकि आखिरी जिल्द में उन्होंने गज़ल और गज़ल के मुख्तलिफ मौज़ूआत, तसव्वुफ़, अखलाकी शायरी, आशिकाना शायरी और दीगर शायरी के जो मौज़ूआत हैं उस पर तफसीली बहस की है। ये तनकीदी नौयत की ये भी बड़ी अहम किताब है जो उनकी ज़िंदगी के इब्तिदाई, इनकी 4 जिल्दें इनकी ज़िंदगी में शाया हो गई थी और आखिरी जिल्द उनकी वफात के बाद शाया हुई थी। सीरतुन नबी भी शिबली नोमानी की बहुत अहम तसनीफ है। शिबली नोमानी ने सीरतुन नबी लिखने का इरादा 1900 तकरीबन 13 में किया था और पहली जिल्द लिख ली थी। दूसरी जिल्द पर काम जारी था कि उनकी वफात हो गई। वफात से पहले उन्होंने अपने शागिर्द रशीद सैयद सुलेमान नदवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा कि सीरत मेरी तमाम उम्र की कमाई है, सब काम छोड़कर इसे मुकम्मल करो। सैयद सुलेमान नदवी ने भी अपने शागिर्द रशीद होने का सबूत देते हुए मुसलसल मेहनत करके 4 सालों में सीरतुन नबी की बकिया जिल्दों को मुकम्मल करके शाया किया। तो ये सवाल भी पूछा जाता है कि शिबली नोमानी की जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उसे किसने मुकम्मल किया। एक और बात जो इनकी शख्सियत के हवाले से, शिबली नोमानी ने आजमगढ़ में दारुल मुसन्निफीन भी कायम किया था। इसके अलावा शिबली नोमानी नदवतुल उलमा लखनऊ से भी वाबस्ता थे, बल्कि शिबली नोमानी नदवतुल उलमा लखनऊ को अपनी सरगर्मियों का मरकज बनाना चाहते थे, जिस तरह सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ को अपनी तमाम सरगर्मियों का मरकज बनाया था। लेकिन वहां पर उनकी मुखालफत और उनके खिलाफ होने वाली साजिशों की वजह से वो 1913 में नदवतुल उलमा से इस्तीफा देकर आजमगढ़ आ गए। आजमगढ़ में आकर उन्होंने दारुल मुसन्निफीन कायम किया और यहाँ पर सीरतुन नबी लिखने का आगाज भी कर दिया। शिबली नोमानी के हवाले से एक बात ये भी कही जाती है कि उन्होंने सर सैयद अहमद खान के से उनकी बहुत मुखालफत थी। हकीकतन ऐसा बहुत ज्यादा नुमाया तौर पर नहीं था। शिबली नोमानी जो हैं वो एक आलिम थे और मजहबी फिक्र के दिलदादा थे। इसके बरक जो सर सैयद अहमद खान था वो रोशन ख्याल और जदीद सोच के अलंबरदार थे। ऐसे में चंद हवालों में उनके यहाँ इख्तिलाफात की नोयत तो नजर आ सकती है, लेकिन ये कहना कि शिबली नोमानी उनके सख्त मुखालिफ थे ये मुमकिन इसलिए नजर नहीं आता कि शिबली नोमानी अलीगढ़ में ही प्रोफेसर के तौर पर 1983 से लेकर 1883 से लेकर और सर सैयद की वफात के बाद तक काम करते रहे। सर सैयद की वफात के बाद उन्होंने अलीगढ़ से इस्तीफा देकर वहां से रुखसत हुए। तो अगर वो इख्तिलाफात की बात होती तो वो सर सैयद की जिंदगी में भी
अली गढ़ को छोड़कर जा सकते थे। दूसरी बात, 1883 में जब वो पहली मर्तबा मशरकी जुबानों के उस्ताद के तौर पर अलीगढ़ आए थे, तो यहाँ पर सर सैयद ने ही शिबली नोमानी को की तरबियत में अहम किरदार अदा किया था, और सर सैयद ने अपने कुतुब खाने से भी उन्हें इस्तिफादा करने का मशवरा दिया था। और यहीं पर शिबली नोमानी को तारीख के का वो ज़ौक़ पैदा हुआ था जो बाद में शिबली नोमानी की खुसूसियत भी करार दिया जा सकता है, या जो शिबली नोमानी की अहमियत उर्दू अदब में है वो उसी ज़माने में उनके यहाँ वो शऊर या ज़ौक़ पैदा हुआ था। तो ये भी। इसके अलावा एक बात और जिसका तस्करा शायद बहुत कम जगहों पर होता है, डॉक्टर जमील जालवी ने किया है कि शिबली नोमानी 1883 में तो अलीगढ़ में उस्ताद मुकर्रर हुए थे, लेकिन उससे चंद साल पहले अपने भाई का एडमिशन दाखिला करवाने के लिए अलीगढ़ आए थे। तो वो एक कसीदा लिखकर लेकर आए थे जिसमें सर सैयद अहमद खान को मौजू बनाया गया था। अब ये भी बड़ी हैरानी की बात है कि उन्होंने उस जमाने में, नौजवानी के जमाने में, सर सैयद अहमद खान का कसीदा भी लिखा। शिबली नोमानी नसर निगार के अलावा शायरी के हवाले से भी किसी हद तक अहमियत रखते हैं। शिबली ने उर्दू में तो उर्दू में तस्नीम तखल्लुस भी इख्तियार किया था, फारसी में शिबली तखल्लुस करते थे। उर्दू और फारसी दोनों जुबानों में उन्होंने शायरी की है, और उन्होंने शायरी के अलावा उनका एक खातून अतिया फैजी से इश्क की दास्तान भी मशहूर है कि उन्होंने उनसे इश्क किया था, और फारसी शायरी में उनका तस्करा भी किया है और खुतूत में भी उनका तस्करा नजर आता है। तो ये सवाल भी शायद उनके हवाले से पूछा जा सकता हो। तो ये तो उनकी चंद बातें हो गई। उनके उसलूब पर भी हम बाद में बात करते हैं आखिर में। डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी पर अब थोड़ा सा मुख्तसरन में जायजा ले लेता हूँ। पहले डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी जो हैं वो 1830 में दिल्ली में पैदा हुए थे, और इनके वालिद मौलवी सादत अली थे जो मौलिम थे, उनका पेशा मौलिमी था। उन्हीं से इब्तिदाई फारसी जुबानों में किताबें पढ़ी थी। उसके बाद वो दिल्ली कॉलेज में दाखिल हो गए। वहाँ पर इमाम बख्श सेहबाई, मास्टर रामचंद्र और मौलवी ममलूक अली जैसे नामवर जो उलमा थे उनसे तालीम हासिल की। नज़ीर अहमद ने मुदर्रिसी से अपनी जो मुलाजमत का आगाज किया, फिर डिप्टी इंस्पेक्टर तालीम हो गए, और उसके बाद वो उन्होंने लिखने लिखाने का सिलसिला शुरू किया। तो 1868 में उन्होंने अपना पहला नॉवेल मरातुल उरूस लिखा था, जिस पर 1869 में उन्हें इनाम मिला। फिर बिनातुन नाश के नाम से नॉवेल लिखा, जिस पर फिर उन्हें इनाम मिला। और उसके बाद मजीद उन्होंने 5 नॉवेल और लिखे, जिस पर जो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद के हवाले से जो सवालात पूछे जाने के इम्कानात हैं वो उनकी नावल निगारी के हवाले से है। तो डिप्टी नज़ीर अहमद के जो नावल्स हैं उनमें मिरातुल उरूस, बनातुन नाश, तौबतुन नसूह और इब्नुल वक्त, ये 4 ज्यादा अहमियत के नावल हैं। इसके अलावा फताना मुक्तिला और अयामा और रोया सादका के नाम भी हैं। मरातुल उरूस उर्दू में पहला नावल है, और इसी हवाले से डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार भी करार पाते हैं। और पहले नावल निगार के हवाले से एक बहस ये भी है कि एक हिंदुस्तान में लखनऊ के एक प्रोफेसर थे डॉक्टर महमूद इलाही, उन्होंने मौलवी करीमुद्दीन की एक तसनीफ खत तकदीर को उर्दू का पहला नावल करार दिया है, जो 1863 में शाया हुआ। लेकिन इस हवाले से थोड़ी सी कंफ्यूजन है, और इस हवाले से थोड़ा सा कहा जाता है कि वो खत तकदीर जो है एक तमसीली किस्सा है और हकीकत में वो नावल नहीं है, और डिप्टी नज़ीर अहमद ही उर्दू के पहले नावल निगार हैं। इसी तरह उनकी जो दूसरा नावल है बनातुन नाश, तौबतुन नसूह के जो किरदार है मिर्जा जाहिरदार बेग, वो भी एक खास अहमियत का हामिल है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। और मरातुल उरूस के 2 किरदारों अकबरी और असगरी के बारे में पूछे जाने का इम्कान होता है। इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद का बहुत अहम नावल है, जो बहुत सियासी नावल भी इसे करार दिया जाता है। इसके 3 किरदार हैं, और तीनों किरदार बहुत ज्यादा अहम हैं। एक इब्नुल वक्त, और इब्नुल वक्त के बारे में कहा जाता है कि ये सर सैयद का किरदार है। इसके अलावा हुज्जतुल इस्लाम, और हुज्जतुल इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि ये डिप्टी नज़ीर अहमद का किरदार है। और इसके अलावा तीसरा किरदार जो है वो नोबिल साहब है, जो एक अंग्रेज तहजीब का परवरदा शख्सियत है जो अंग्रेजों को पसंद करता है। तो ये 3 किरदार हैं जो डिप्टी नज़ीर अहमद के इब्नुल वक्त में बयान में आते हैं। इस नावल के बारे में कहा जाता है कि इस नावल में उन्होंने सर सैयद अहमद खान पर
तनकीद की है। डिप्टी नज़ीर अहमद को नॉवल निगारी के हवाले से ही ज़्यादा शोहरत है और उनके बारे में ज़्यादा सवाल नॉवल निगारी के हवाले से ही पूछा जा सकता है। इसके अलावा मुतरजिम के तौर पर भी उनकी जो खिदमात हैं वो नाकाबिल फरामोश हैं। उन्होंने ताज़ीरात हिंद के नाम से इंडियन पेनल कोड जो अंग्रेज़ों ने एक्ट बनाया था उसका तर्जुमा भी किया था ताज़ीरात हिंद के नाम से। और उन्होंने जो उस ताज़ीरात हिंद का तर्जुमा करते हुए बाद इस्तिलाहात को इस कदर महारत और खूबसूरती से तर्जुमा किया है कि वो इस्तिलाहात आज भी उसी तरह राइज हैं, जिसमें से एक इस्तिलाह ताज़ीरात हिंद भी है जो हिंदुस्तान में ताज़ीरात हिंद और पाकिस्तान में ताज़ीरात पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। और इसके अलावा उन्होंने तर्जुमा कुरान भी किया और कानून इनकम टैक्स के कानून का तर्जुमा भी किया और कानून शहादत का तर्जुमा भी किया। एक और अहम किताब उनकी उम्माहातुल उम्मा के नाम से है। ये डिप्टी नज़ीर अहमद की आखिरी किताब थी और इस किताब में डिप्टी नज़ीर अहमद ने बाज़ जगहों पर बामुहावरा ज़ुबान इस तरह इस्तेमाल की थी कि जिसमें ज़म का पहलू निकलता है और उल्मा ने इस किताब की वजह से उन पर कुफ्र के फतवे आयद कर दिए थे और इस किताब को बाद में जब्त करना पड़ा और जलाना पड़ा। उनके पोते शाहिद अहमद दहलवी ने 1930 या 30 के बाद इस किताब के दोबारा छपवाया और इसको तकसीम करने के लिए उन्हें मिर्जा अजीम बेग के पास भेजा। उन्होंने इसके इश्तिहार जब तबाह कराए तो फिर लोगों ने इस पर एतराज किया और उन्हें घर का घेराव कर लिया, जिसके बाद दोबारा इस किताब को जला दिया गया। तो यही डिप्टी नज़ीर अहमद का आखिरी काम था। तो इनकी नॉवल निगारी के हवाले से पूछा जा सकता है या इनकी किताबों के हवाले से, इनमें से अक्सर के बारे में हमने तज़किरा कर लिया है। उसलूब के हवाले से मुख्तसरन में दोबारा आखिर में जायजा लेता हूँ। सबसे आखिर में जब अब मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का और तज़किरा कर लेता हूँ, फिर मुख्तसरन 2-2 मिनट में तमाम की उसलूब के हवाले से बात कर लूँगा, जो तमाम के उसलूब के का जायज़ा या मवाज़ने की कैफियत को बयान करने के लिए भी शायद मुफीद साबित हो। अच्छा, जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद पर बात कर लेते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 में दिल्ली में पैदा हुए थे। आज़ाद के वालिद मौलवी मोहम्मद बाकिर थे, जिन्होंने 1836 में दिल्ली उर्दू अखबार निकाला था, जो दिल्ली का पहला उर्दू अखबार था। ये मौलवी बाकिर इस लिहाज से भी अहमियत के हामिल हैं। मौलवी बाकिर बहादुर शाह जफर, उस्ताद ज़ोक और ज़माने के बड़ी बड़ी शख्सियात से उनके ज़ाती और दोस्ताना ताल्लुकात थे। इसीलिए मोहम्मद हुसैन आज़ाद की इब्तिदाई तरबियत भी उस ज़माने में शाही महल में और ज़ोक की शागिर्दी में हुई। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो भी जो रिसाला दिल्ली उर्दू अखबार था उससे भी मुंसलिक हुए। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो मौलवी बाकिर हैं, उन्हें दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल जैश टेलर के कत्ल के इल्ज़ाम में फांसी चढ़ा दिया गया या गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उस हवाले से एक वाक़या मशहूर है कि मौलवी बाकिर को अंग्रेजी ज़ुबान नहीं आती थी और जैश टेलर 1857 के हंगामे उनके घर में ठहर गए थे, जिसके बाद जब हंगामा करने वालों यानी जो जंग करने वाले मुसलमानों और हिंदुओं ने ऐलान कर दिया था कि जो भी शख्स अंग्रेजों को पनाह देगा उन्हें और उनके खानदान को कत्ल कर दिया जाएगा। जिसके बाद मौलवी बाकिर ने जेश टेलर को अपने घर से निकलने पर मजबूर किया। जेश टेलर ने एक अंग्रेजी में खत लिखा और कहा कि अगर मैं जिंदा बच गया तो ये खत मुझे देना और अगर मैं मर गया तो ये खत हुकाम तक पहुंचा देना। किस्मत का खेल ये हुआ कि जेश टेलर बाहर निकले तो पकड़े गए और उन्हें कत्ल कर दिया गया। बाद में जब हंगामा ठंडा हुआ तो मौलवी बाकिर को कुछ अरसे बाद याद आया तो वो खत लेकर हुकाम के पास पहुंच गए। उस खत को जब अंग्रेज हुकाम ने पढ़ा तो मौलवी बाकिर को गिरफ्तार कर लिया। उस खत में ये लिखा था कि मैं मौलवी बाकिर के घर में महफूज था, लेकिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती निकाल रहे हैं और अगर मैं मारा गया तो उसके जिम्मेदार मौलवी बाकिर होंगे। और इसी को बुनियाद बनाकर मौलवी बाकिर को कत्ल कर दिया गया। और उनके कत्ल के बाद मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने पूरे खानदान की जान बचाने के लिए रातों रात दिल्ली से निकल गए और मुख्तलिफ शहरों से होते हुए आखिरकार चंद सालों के बाद लाहौर पहुंच गए और लाहौर में ही फिर मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी बाकी जिंदगी गुजारी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद जिस ज़माने में लाहौर पहुंचे उस ज़माने में लाहौर में डॉक्टर लाइट्स का इल्म अमल की शोहरत थी और उनसे मुलाकात हुई और उनसे बहुत करीब हो गए। 1865 में अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया, जिसमें मोहम्मद हुसैन आज़ाद का
अहम किरदार है। उसी 1865 में अंजुमन पंजाब के क़याम के वक्त डॉक्टर लाइट्स का तारुफ भी कराया गया और उन्हें अंजुमन पंजाब का पहला सदर मुंतखब किया गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अंजुमन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे। अंजुमन पंजाब का पूरा नाम अंजुमन मुतालिबे मुफीदा पंजाब था, जो अंजुमन पंजाब के नाम से याद रखा जाता है। इस इदारे इसके जरिए अखबार अंजुमन के नाम से भी शाया होता था, जिसके मुदीर मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे। और डॉक्टर लाइट्स ने कोशिश की कि अंजुमन पंजाब के तहत जो मुसन्निफीन और शोरा हैं वो जदीद मौज़ूआत पर बात करें या नज़में लिखें या मज़ामीन लिखें। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद मौज़ूआत पर काफ़ी मज़ामीन लिखे। 1874 में अंजुमन पंजाब के तहत ही जदीद मौज़ूआती मुशायरों का आगाज़ हुआ, जिसका तज़करा हमने हाल ही की सवाने के हवाले से भी किया है। तो अंजुमन पंजाब का जो जदीद नज़म के हवाले से किरदार है वो भी नाकाबिले फरामोश है। गो के अंजुमन पंजाब के तहत सिर्फ 10 मुशायरे हुए थे, लेकिन उर्दू अदब में उन 10 मुशायरों की भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को 1887 में सरका शमसुल उलमा का खिताब मिला था और 1890 में वो मुलाजमत से आज़ाद हो गए थे। मुलाजमत से उन्होंने सबकदोशी इख्तियार की। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे और 1890 में ही वो जुनून के मर्ज में, पागलपन के मर्ज में मुब्तला हो गए थे और आखिरी 20 बरस उन्होंने इसी तरह गुजारी और वो आखिर 1910 में इंतकाल कर गए। उनकी जो किताबें हैं उनमें आब हयात और नेरंगे ख्याल खासतौर पर अहमियत की हामिल है। आब हयात उर्दू शायरों का तस्करा है और इसे उर्दू शायरी की तारीख भी करार दिया जाता है। नेरंगे ख्याल अंग्रेजी मज़ामीन का तर्जुमा है जो 2 हिस्सों में है। पहले हिस्से में 8 मज़ामीन और दूसरे हिस्से में 5 मज़ामीन हैं। इसके अलावा दरबार अकबरी है उनकी किताब, जिसमें अकबर बादशाह के दरबार और उनके जो अहम वज़रा है उनकी तफसीलात बयान की हैं। सुखनदान फारिस में उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान और लुगात के हवाले से तफसीलात फराहम की हैं। ये इल्म लुगत और लिसानियात के हवाले से अहमियत की हामिल है। कसरत हिंद में उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमान बादशाहों का तस्करा बयान किया है। इसके अलावा उनकी एक तसनीफ ड्रामा अकबर भी है। ड्रामा अकबर, नाम तो ड्रामा अकबर है लेकिन उसमें उन्होंने शहनशाह जहांगीर और नूर जहां के दास्तान इश्क को ड्रामे की सूरत में पेश किया है। आज़ाद की तमाम तसानीफ में आब हयात सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है और उस तसनीफ में भी जो आज़ाद का उसलूब है वो ख़ास अहमियत का हामिल है। आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने पुरानी तस्करा नवीसी से हटकर उर्दू शायरी को एक नए अंदाज से उजागर किया और ऐसे खूबसूरत उसलूब में उन्होंने शोरा के मुरक्के खींचे हैं जो रहती दुनिया तक लोगों को याद रहेंगे। हाफिज महमूद शिरानी आब हयात के हवाले से लिखते हैं कि उर्दू क्या फारसी में भी कोई इस पाए की किताब ना थी और ये अगरचे नस्र है लेकिन इसमें नज्म लुत्फ नज्म का सा है। यानी ऐसी शायराना उन्होंने नस्र लिखी है जिसमें लुत्फ किसी नज्म से कम नहीं था और जबकि ये तारीख है लेकिन इसका ढंग अफसाने का सा है। यानी इतनी दिलचस्प और खूबसूरत अंदाज में उन्होंने ये तहरीर लिखी है कि अफसानवी अंदाज इख्तियार कर लिया। नेरंगे ख्याल भी आज़ाद के उसी उसलूब का शाहकार है। वो कि ये अंग्रेजी मज़ामीन का तर्जुमा है लेकिन इसमें उन्होंने जो तर्ज इख्तियार की है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो ही उनकी इंशा परदादी का नमूना या उनकी अहमियत को उजागर करता है। ये दोनों किताबें 1880 में शाया हुई और 1883 में इनके दूसरे एडिशन शाया हुए। पहले दूसरे एडिशन के शाया होने के साथ साथ ये दोनों किताबें पंजाब यूनिवर्सिटी के निसाब में भी शामिल कर ली गई थी। अब यहाँ पर तकरीबन जो शख्सियात के हवाले से है बातें हैं, मैंने शायद थोड़ा सा और तेजी से बयान करने की कोशिश की, हो सकता है चंद बातें रह गई हों। अगर कुछ कमेंट्स की सूरत में आप सवाल देते हैं तो कोशिश करूंगा कि वो बातें भी। बनातुनाश के एग्जैक्टली के माने पूछे गए हैं। मेरा ख्याल है बनातुनाश कहा जाता है कि वो 7 सितारों की जो झुरमट होती है सुरैया, उसे उसकी 7 सितारों की जो झुरमट होती है शायद उसे बिनातुन नाश कहा जाता है। एग्जैक्टली इसके माने मेरे जहन में इस वक्त नहीं है। अगर माने मेरे सामने आते हैं तो मैं उसके माने भी आपको
बताता हूँ। अच्छा, यहाँ एक सवाल ये भी था कि हाली शायर बेहतर है या नसर निगार, और एक सवाल और है कि मुतकद्दिमीन और मुतवस्सितीन के बारे में दोबारा बता दीजिए कि कायम चांदपुरी के हवाले से, वो बता देता हूँ चलें। अच्छा, हाली शायर बड़े हैं या नसर निगार, इस हवाले से कोई बात कही नहीं जा सकती। हाली शायरी में भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है और नसर निगारी में भी कम अहमियत के हामिल नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि हाली वाहिद अनासिर खमसा की शख्सियत हैं कि जिनकी शायरी का मुताला ना करें तो तारीख अदब मुकम्मल नहीं होती, और इसी तरह उनकी नसर निगारी का जायजा ना लें तो वो तारीख अदब मुकम्मल नहीं होती। शायरी इसलिए कि उनकी गज़ल भी अहमियत की हामिल हो, और नज़म में जो उनके तजर्बात हैं, खुसूसन मुसद्दस हाली और दीगर जो जदीद नज़में हैं, उस हवालों से जो हाली हैं वो जदीद नज़म के बानी कहलाते हैं। तो इसलिए उर्दू शायरी में उन्हें का जिक्र ना किया जाना लेकिन उनके साथ ज्यादती होगा। इसी तरह नसर निगारी में वो तनकीद निगारी के बानी है, सवाने निगारी के भी बानी है, और मकाले भी उन्होंने बहुत जबरदस्त लिखे हैं। तो इसलिए वो नसर निगार की हैसियत से भी बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं, तो उन्हें दोनों हवालों से याद रखना है। कायम चांदपुरी ने अपना तज़किरा मखज़न निकात 1754 में मुरतब किया था, जिसमें उन्होंने अपने शोरा को 3 हिस्सों में मुतकद्दिमीन, मुतवस्सितीन और मुताखरीन के तौर पर तकसीम किया था। मुतकद्दिमीन में अमीर खुसरो से लेकर और जो दक्कनी कदीम शोरा थे उन्हें शामिल किया। मुतवस्सितीन में शाह मुबारक आबरू, खाने आरजू और उस जमाने के जो एहाम गो शोरा थे उन्हें शामिल किया। और फिर मुताखरीन में रद्द अमल के शोरा मिर्जा मजर जाने जाना और फिर दीगर हम असर शोरा को शुमार किया था। और उसके बाद जो बाद में तस्करे लिखे गए उनमें शोरा को इसी तरह 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, लेकिन तमाम जो मुसन्निफीन हैं उन्होंने उन्हें अपने अपने तौर पर अलग-अलग हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये बात भी हो गई। अब मैं एक एक मिनट में जल्दी जल्दी से चारों पांचों के उसलूब की खसूसियात बयान कर देता हूँ। सर सैयद अहमद खान के उसलूब की खसूसियत मकसदियत और इस्लाह है। उन्होंने अपनी तहरीर की बुनियाद मकसदियत को रखा है। उन्होंने जुबान बयान को खूबसूरत बनाने की बजाय मानी और मफाहिम पर जोर दिया है। वो उर्दू जुबान बयान को अहमियत देने की बजाय मतलब और मफाहिम को अहमियत दी है। सर सैयद अहमद चाहते थे कि उनका जो बयान करने का तरीका है वो लोगों के जहनों में फिट हो जाए, और उसके लिए उन्होंने इंतहाई आम लहजा, आम अंदाज इख्तियार किया। बाद औक़ात यूं भी महसूस होता था कि वो उन्होंने जो उर्दू जुबान बयान है उसमें कोई ख़ास उसलूब इख्तियार नहीं किया। उनके अंदाज को सपाट लहजा भी, सपाट उसलूब भी करार दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद उन उर्दू अदब में वो अपनी ख़ास इंफरादियत रखते हैं। यानी उनकी तहरीरों में मवाद और मानी मवाद ज़्यादा अहमियत रखता है मानी और मफाहिम के एतबार से। उन्होंने उसमें कोई खूबसूरती या कोई रंगीनी ये जुबान पैदा करने की कोशिश नहीं की। अब हाली की अगर बात आए तो हाली बुनियादी तौर पर सर सैयद अहमद खान के ही मुकल्लिद हैं। वो अपनी तहरीरों में सर सैयद अहमद खान ही का अंदाज इख्तियार करते हैं, लेकिन वो सर सैयद अहमद खान से इस एतबार से मुख्तलिफ हैं कि सर सैयद अहमद खान ने अपनी तहरीरों में इख्तिसार को अहमियत दी है। इसके बरक्स हाली ने तफसील में जाकर तहरीरों को अपनी तहरीरों को रोशन किया है। यानी तफसील जो तलब चीज़ें हैं उन्होंने छोटी छोटी बातों के भी इंतहाई तमाम पहलुओं से जायजा लेकर इंतहाई तफसील के साथ बयान किया है। तो ये एक बड़ी ख़ास इंफरादियत है जो शिबली और जो हाली को सर सैयद से अलहदा करती है। शिबली नोमानी के का जो उसलूब है वो शायराना उसलूब बयान है। उसके हवाले से डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने 4 खसूसियात बयान की हैं। एक, उनकी जो खसूसियत है मुख्तसरन वो इख्तिसार है। शिबली नोमानी ने इख्तिसार को अहमियत देते हैं। दूसरी जोश बयान है, उनके बयान को पढ़कर कारी के जज्बात में हिजान पैदा होता है। तीसरी खसूसियत आलिमाना शान बान है, उनकी तहरीरों को पढ़कर महसूस होता है कि किसी आलिम की तहरीर है। और चौथी खसूसियत इस्तदलालियत है जो सर सैयद और हाली के यहाँ भी हमें नजर आती है। अगर ये तो उसलूब की खसूसियात मुख्तसरन में आपसे अर्ज कर रहा हूँ, जबकि नज़ीर अहमद दहलवी के जो उसलूब है वो दहलवी का खास उसलूब है, जिसे दहली की टकसाली जुबान कहा जाता है, वो हमें नजर आता है। उसमें रोजमर्रा मुहावरात को उन्होंने बड़ी खूबसूरती से
پیش کیا ہے روزمرہ کی زبان اور محاورات کو جس قدر خوبصورتی اور مہارت سے جبکہ نذیر احمد نے پیش کیا ہے، دوسرا ہمیں مصنف نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ عورتوں کی زبان کو بھی جس طرح خوبصورتی سے انہوں نے پیش کیا ہے وہ ان کی انفرادیت ہے۔ ان کے ناولوں میں کردار نگاری اور مکالمہ نگاری بھی خاص اہمیت کی حامل ہے، اور وہ مکالمہ نگاری یا کردار نگاری کے حوالے سے بھی شہرت رکھتے ہیں۔ اور اگر محمد حسین آزاد کی بات ہو تو محمد حسین آزاد دیگر تمام عناصر خمسہ میں اپنی خاص انفرادیت رکھتے ہیں۔ سر سید احمد خان، حالی، شبلی اور جبکہ نذیر احمد، ان کی تحریروں کی بنیاد اصلاح قوم یا مقصدیت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جبکہ مولانا محمد حسین آزاد اس لحاظ سے ان تمام شخصیات سے الگ ہیں کہ انہوں نے اپنی تحریروں کی بنیاد صرف و صرف اپنے اسلوب یعنی انشا پردازی پر رکھی ہے۔ محمد حسین آزاد ایسے اسلوب کے مالک تھے کہ جو شاعرانہ اسلوب بیان قرار دیا جا سکتا ہے، اور وہ اپنے اسلوب کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا اسلوب ایک شاعرانہ اسلوب بیان ہے جسے انشا پردازی بھی کہا جاتا ہے، وہ اپنے اسلوب انشا کی وجہ سے ہی خاص طور پر شہرت رکھتے ہیں۔